تو میں روز کھڑے ہوتے ہیں, جو پارلیمنٹ روز کور کرتے ہیں, کم از کم ان کو تو یہ ریزن نہ بتائیں آپ. ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ نون لیگ جتنا کلوز ہو گئی ہے, اب 1 پیج پہ آ گئی ہے, نیا پیج ہے, 1 پیج ہے. اس کے بعد جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, پولیٹکس میں پہلے ہی تھا اسٹیبلشمنٹ کا رول, اب کیونکہ وہ انلیگل تھا تو اس کے لیے بھی قانون بنا دیں کہ جو فون آتے ہیں خفیہ اداروں سے قانون سازی کے لیے تو وہ بھی قانون میں ڈال دیتے پھر, کیونکہ وہ پہلے سے ہو رہا تھا. یا مسنگ اس میں ویسے ہے کہ آپ کسی شخص کی آئیڈینٹی بتا نہیں سکتے, so you can't really say کہ آپ کو کال کہاں سے ہے. قانون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک انکریز رول ملا ہے اکنامک سفیئر کے اندر, انویسٹمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ نے لے کر آنی ہے, آئی ٹی کے سیکٹر کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لیڈ کرنا ہے, زرعی انقلاب بھی اسٹیبلشمنٹ نے لانا ہے. تو وہاں پہ آنے سے پہلے کچھ پروٹیکشنز نیڈڈ تھی کہ جو میڈیا کی جو کلیئر ہے اور جو ڈاکومنٹیشن ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن کو ریسٹرکٹ کرنا مقصد تھا. تو یہ لا اس لیے لایا گیا ہے کہ تمام جو سیکٹرز ہیں, پرٹیکولر میڈیا اور جرنلسٹ, ان کے اوپر ایک چلنگ افیکٹ کیا جائے کہ جب یہ زرعی انقلاب لا رہے ہوں گے, جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر ہم انڈسٹریز میں چھکے مار رہے ہوں گے, اور جب یہ معدنیات نکالی جا رہی ہوں گی $6 ٹریلین کی, تو اس وقت ہم سے کوئی سوال نہ کرے, کوئی ڈاکومنٹ پاس نہ رکھے, اور کسی ایسے ڈپلومیٹ سے نہ ملے جو ہمیں نہیں پتا وہ جاسوس ہے. یہ رینج آف امپلیکیشن جس کو ہم ڈسکس کریں, اٹ مے اور مے ناٹ ہیپن, لیکن رینج آف امپلیکیشن یو ہیڈ اے پوائنٹ اینڈ دین آئی ول گو. نہیں, یہ جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ فورن ایجنٹ, اس کا میں بتا رہی تھی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کا ایڈریس ہے فون کے اندر اور نمبر بھی ہے اگر, تو آپ کو بھی پکڑ کے لے کے جا سکتے ہیں. خفیہ اہلکاروں, مخبر یا ذرائع کی شناخت بتانا جرم ہے. تو میاں نواز شریف اگر واپس آ کے کہ میں بتاؤں مجھے کیوں نکالا, وہ نام نہیں لے پائے. دیکھیں, میں آپ کو پتا تھا نا وہ کنہوں نے نکالا, انہوں نے بتانا بھی نہیں, انہوں نے نام لیے تھے, انہوں نے اس قانون کے تحت جرم ہو جاتا ہے. آپ نہیں بتائیں گے. دیکھیں, میں He can't say it کہ مجھے کیوں نکالا. ہر چیز کا ایک شان نزول ہوتا ہے. اب جس طرح متی صاحب نے بات کی, جو ابھی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے, 4 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں اکنامک ریوائول کے لیے, باہر کے ممالک سے بھی جہاں سویلین لیڈرشپ مل رہی ہے وہاں ملٹری لیڈرشپ بھی مل رہی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. سو آئی تھنک ان ایریاز میں جو پروٹیکشنز ریکوائرڈ تھیں وہ تو دی گئی ہیں, چلیں وہ اپنی جگہ پہ. جو میں نے 9 مئی کی بات کی, دیکھیں ایسا واقعہ کبھی تاریخ میں ہوا نہیں ہے, اور اس کے ریپرکیشنز کیوں نہیں ہوا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا, وہ بڑا واقعہ تھا. یا اس سے بڑے کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو, جی ایچ کیو کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا, اے پی ایس پشاور میں جو اٹیک ہوا, کسی سیاسی جماعت نے اے پی ایس پہ اٹیک نہیں کیا, کسی سیاسی جماعت نے جی ایچ کیو پہ اٹیک نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت یہ کام کر رہی ہے. آپ کی حکومت کو یرغمال بنایا ایک گروپ نے فیض آباد پر دھرنا دے کر, یور منسٹرز ہیڈ ٹو ریزائن. ایبسولوٹلی, بالکل وہ ہوا, مگر آج تک آپ دیکھیں نا کیا ہوا. پھر جوڈیشری مینج ہوئی, آج تک پی ٹی وی حملہ کیس جو ہے وہ کولڈ اسٹوریج میں پڑا ہے. ہم نے تو اس میں بھرپور ایویڈنس بھی دیا, ہم نے اس کی پیروی بھی کی, بٹ پی ٹی وی حملہ بھی ایک بہت بڑا اس ملک کا سانیہ. بٹ ایکسٹرنل تھریٹ کی جب بات آتی ہے, جو میں نے سیبوٹاج کی ڈیفینیشن کیوں دی, میں نے اس لیے دی کہ آپ ایکسٹرنل تھریٹ پہ ونریبل تھے. اس دن اگر ایکسٹرنل تھریٹ آ جاتا تو کون رسپونڈ کرتا, ہمیں نہیں پتا کون رسپونڈ کرتا, مگر اس کے لیے بھی ذمہ دار سیاستدان ہے نا, ایک سیاسی گروہ نے یہ حملے کیے نا. سوال یہ ہے کہ آپ کے ایف آئی اے کا ادارہ ہے, پولیس کا ادارہ, آپ انٹر سروسز انٹیلیجنس جو کہ آرم فورسز کی پرائمری انٹیلیجنس ایجنسی ہے, جس نے افغانستان میں بھی جھنڈے گاڑے ہیں انٹرنیشنل, اب ان کو آپ نے یہ کام دے دیا کہ یہاں گھروں میں اور گلی ایسپیوناج کی بات کر لیتے ہیں, جنرل رضوان والا جو ایشو تھا, ایسپیوناج کی بات کر لیں, اور وہ آپ کے اندر سے نکلا نا, طاقت کا استعمال کریں گے, ڈاکومنٹس ریکور کریں گے. اب یہ کام رہ گیا ہے. جو جن 2 فوجی افسران کو سزا ہوئی تھی ایسپیوناج پہ, وہ آپ کے سامنے ہے کیس نمبر 1. نمبر 2, کلبھوشن بھی پاکستان کے اندر سے پکڑا گیا. But they were punished when this law didn't exist. That's fine. انٹیلیجنس کا کام, دنیا میں انٹیلیجنس کا کام ریڈ کر کے اریسٹ کرنا نہیں ہوتا. انٹیلیجنس کا کام انٹیلیجنس کیا طریقہ, اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے تو فرینکلی وہ کر بھی سکتے ہیں. اگر انٹیلیجنس لیکن ود لا انفورسمنٹ ایجنسی, اور وہ کرتے بھی رہے, کیونکہ ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ آئی او پیز جو ہے سر, وہ اس کا کوئی اس کا ایس او پی نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ اس کو لیگلائز کر دیا, یہ کتنا آپ کے خیال میں ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم صرف منفی زاویے سے اس کو دیکھیں, لیکن تاریخ بدقسمتی سے ایسی ہے اور حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں پھر, انہوں نے تو انٹرم لگا کے چلے جانا ہے.
है जी, वो तो बाकी तो सारे मुल्क ने भुगतना है ना। और इंटरम कितना चलता है? हाँ, वो भी जरा ये भी जरा देखिएगा। बताइए। तो बात थोड़ी सख्त है, लेकिन पाकिस्तान की एक रियलिटी है। पाकिस्तान की एक रियलिटी है। देखिए, अब इससे भी आगे चले जाते हैं। यहाँ पर जो लेजिस्लेशन होती है, आपको अच्छी तरह पता है, चाहे वो एक पार्टी के मफाद में हो या दूसरी के मफाद में हो, अपने अपनी पावर के दिनों में यहाँ से पार्लियामेंट लॉजेस से लोगों को उठा के ले जाके कानून साजी करवाई गई है। एक ऐसे मुल्क में जहां ये भी होता रहा है, और एक ऐसे मुल्क में जहां कानून साजी करने के लिए खुद लोग, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस, वो तैयार बैठे होते हैं कि हमसे ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो। उस मुल्क में ये बहस करें, आइडियली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसे मुल्क में हम ये बातें कर रहे हैं जहां पर पूरी की पूरी पार्लियामेंट तैयार है कि ये करा लो, लेकिन ये शराइत पे करा लो। सो मैंने नोट रखा, मेरा मूड बनी, मेरी डिमांड पूरी कर दो, मुझे गवर्नमेंट में ले आओ। ये नोट जो है, जो दस्तावेज की बात कर रहे हैं, सो हम टू मच इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़े कोई डेमोक्रेट्स हैं जिनका वास्ता पड़ गया अचानक बुरे हालात से, और अब वो बेचारे मतलब उसूली लड़ाई लड़ते लड़ते गिर गए। क्या हम इनको बहुत ज्यादा ओवर पंच नहीं कर रहे हैं? मतलब मैंने जिस शुरू की थी तला साहब, लेकिन सर आप कर लेने नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि मैं पॉइंट अपना रेज ये करना चाह रहा था कि एक ऐसे मुल्क में हम, एक बात। दूसरी चीज ये, यस आइडियली हमको तो ये आवाज उठानी चाहिए, लेकिन तला साहब हमें ये भी देखना होगा कि जो टेररिज्म वाला मामला है ना, उस पे तो आप ज़रबे रद्दुल फसाद और मुख्तलिफ ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ट्रेंड ये सेट हो गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंसेस के ऊपर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एजेंसीज की गाड़ियां तोड़ेगी, इंस्टॉलेशंस को आग लगाएगी, तोड़ फोड़ करेगी, और उसके पास एक डेमोक्रेटिक शेल्टर होगा प्रोटेस्ट के नाम पे, तो फिर ये इतना आसान भी नहीं रह जाएगा आपके लिए कि आप उसको जो है ना, वो let me complete if you allow. I think this is very unfair. इसमें ये इतना आसान भी नहीं रह जाएगा कि आप डेली डाली FIA से और डेली डाली अपनी जो लॉ एनफोर्समेंट दूसरी एजेंसीज है उनसे काम करा ले। यस, ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में कवानीन बनते हैं और उसका इस्तेहसाल होता है। पीका आया इनके दौर में, पीका के ऊपर फिर अमेंडमेंट आई। आप जानते हैं पीका का मसला अगर ये आके अमेंडमेंट ना करते तो इस पे तो पूरी PTI फिट हो जानी थी। ये जो कुछ 1.5 साल के अंदर हुआ है। इसी तरीके से ये जब कवानीन बनाते हैं तो ये दूसरे का सोच के बनाते हैं, उस गड़े में प्रोटेक्शन उसकी होनी चाहिए। तो माय पर्सनल व्यू कि हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल ये समझें कि अब देखिए ना, कल मिसाल के तौर पे कल MQM खड़ी हो जाती है, परसों PMLN खड़ी हो जाती है, और पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाती है, और वो सिंध में कोई चीज जलाता है, वो लाहौर में कोई चीज जलाता है। सिर्फ एक नुकता कुछ भी कि अभी जिस तरह से इन्होंने कहा ना, जो PTI ने किया, जो 9 मई का बार बार जिक्र करें, अगर सिर्फ उस हद तक है और अगर वाकई आइडेंटिफाइड लोगों को आपने सजाएं देनी है, वो एक अलग सेपरेट थी, वो कर रहे हैं आप बिल्कुल करें, लेकिन ये मत भूलें कि जो भी कवानीन इस मुल्क में बने हैं, जिस हुकूमत ने भी बनाए हैं, जिस सियासी जमात ने भी बनाए हैं, जाते जाते ज्यादा कवानीन वो जाते हैं। मुझे याद है PTI जब ये बिल्स इसी तरीके से दर्जनों के हिसाब से पार्लियामान से मंजूर करा रही थी, तब आप लोग क्या कहते थे? अब 52-53 जो है बिल्स मंजूर हो गए, वो तो ऑर्डिनेंसेस पे चल रहे थे। आप कहते थे कि जी हुकूमत की ऑर्डिनेंस पे चला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर एक जमात ने हुकूमत बनाए, जो बिल्स बनाए, कवानीन बनाए हैं, वो किस पे लागू होते हैं? ये तारड़ साहब की जमात बच पाएगी, उससे नहीं बच पाएगी, ये सवाल है। अनफॉर्चुनेट 75 साल से ब्रेन वॉश हुए हैं हम लोग। आज हम बात कर रहे हैं PTI की। PTI को लाने वाले कौन है? PTI के जो हम जिनको यूथिया कहते हैं, माजरत के साथ, उनका ब्रेन वॉश किसने किया? एस्टैब्लिशमेंट ने किया। FIA या पुलिस को जो तबाह किया है तो वो एस्टैब्लिशमेंट ने डिस्ट्रॉय किया, डिक्टेटरशिप ने डिस्ट्रॉय किया, इंस्टीट्यूशन को बनने नहीं दिया। और आज ये हम बात कर रहे हैं कि सियासी पार्टी अगर गली मोहल्लों में कुछ करेगी तो कौन उनको आग लगाएगी, तो क्या होगा? ये वही बात है ना कि अगर हमें पुलिस डंडे मारेगी, हम इनकलाब कैसे लाएंगे? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो कर रही है उसके ऊपर इंटेलिजेंस को स्टैंड लेना चाहिए। तारड़ साहब की अपनी सियासी मजबूरी है, सियासी जमातें हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि सियासी जमातें नाकाम है, क्योंकि FIA नालायक है, क्योंकि पुलिस फेलियर है, तो इसलिए हमें जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप गली मोहल्लों में अपने अवाम के साथ लड़ाने के लिए इख्तियार दे रहे हैं। आपको अंदाजा है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या नताइज होंगे? और हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसी के बगैर पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बैठ के ये बात नहीं करें, हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। देखिए, फ्रैंकेनस्टाइन वाली जो बात की ना, एग्जैक्टली मती साहब का फ्रैंकेनस्टाइन आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है। देखिए, एक फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट हुआ और उस फ्रैंकेनस्टाइन ने हर चीज डिस्ट्रॉय की 4 साल के अंदर। ये तो बात पसंद आई आपको? मैं बिल्कुल, एक फ्रैंकेनस्टाइन मौजूद है, बातें की, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। लेकिन मैं आपसे अगर ये भी पूछ पाऊँ, आपने जिक्र किया 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए।
28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। बहुत सारे बिल्स हैं इसमें, देखे ना, एक गुज़िश्ता रोज भी कौमी असम्बली ने 6 बिल पास करवाए। इस तरह तो T20 खेलते हैं नहीं, लोग। देखें, मैं इसमें एक मेरा बिल भी ये है, एक डोमेस्टिक अब्यूज के हवाले से एक बिल है अभी। एक आधा बिल सारा साल याद नहीं आया आपने, आप बिल पास करवा और कहते हैं एक आधा बिल हमारा भी है। नहीं, मैंने कहा मेरा पर्सनल इनिशिएटिव के तौर पे What is happening? ये बताएं उस पे 2 पब्लिक रैक्स, सेनेटर आयशा रज़ा फारूक ने हमारी बड़ी हेल्प की, एसएपीएम यूथ अफेयर्स ने काफी हेल्प की। रिजवाना वाला जो केस हुआ उसके बाद जरूरी समझा गया कि पाकिस्तान पीनल कोड में अमेंडमेंट की जाए और जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है इस्लामाबाद का उसमें अमेंडमेंट की जाए। तो वो एक पर्सनल इनिशिएटिव था, उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। और 60 की वजाहत है, क्या हो रहा है? मतलब किस जल्दी में है आप? नहीं, कानून साजी होनी चाहिए। नहीं, अच्छा मुझे कानून साजी है, ये तो गोलाबारी तो नहीं होनी चाहिए। एक सवाल इनसे में कि ये जो कवानीन इतने अच्छे बकौल आपके बन गए हैं, अब इनमें से किसी कानून का इतलाक कल को आप पे, आपकी जमात पे होता है, फिर You don't have a problem with that? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो कवानीन बने हैं विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द स्टेट, कि जहाँ पे शरपसंदी, दहशतगर्दी को काउंटर करने की जरूरत है। अगर मैं 9 मई जैसा वाकया करता हूँ और मैं पाया जाता हूँ कोर कमांडर हाउस के अंदर चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए, कोर कमांडर की बेटी का जहेज लूटते हुए, तो बाय ऑल मीन्स क्यों ना लगे, जरूर लगे। सर यहाँ पे जनाब मुस्लिम के अंदर जो कौम की बेटियों के साथ होता रहे उसके ऊपर आपने इंसाफ दिलवा दिया। आप एक जना उस पे हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है, इंस्टीट्यूशन है, मगर आपके जो सिविलियन इदारे हैं, FIA है, पुलिस है, इट्स योर फेलियर। आप हुकूमतों में रहे और आज आप बात कर रहे हैं कि FIA इस काबिल नहीं है और आपको अख्तियारात ऐसा ही को दे रहे हैं और IP को दे रहे हैं। आप माने माफी मांगे कौम से, फिर आप दोबारा इलेक्शन के थ्रू लड़ने चाहते हैं। आप इधर बैठ के कहते हैं कि हाँ मानता हूँ, फिर इलेक्शन तो किधर बैठ के कहेंगे? बात ये है कि अपनी सर गलती तस्लीम करें ना, उनका एक आर्गुमेंट है, वो उनके साथ के मुताबिक। ये तो फिर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि फेलियर कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का ही है ना। 9 मई भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो ये नौबत आई। पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व ना होती तो मेरा ख्याल है ये नौबत ना। पहली बात तो है कि यहाँ हम में से किसी भी बैठे शख्स ने ये नहीं कहा कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसा रोल दे दें कि जो सिविल आर्म फोर्सेस या दूसरी जो पुलिस या FIA का जो रोल है, पैरामिलिट्री फोर्स, इधर एक बात ये हो रही है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक चली जाएगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चली जाएगी, तो उसको बड़े आपको फिर मखसूस कवानीन, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर को जो प्रोटेक्शन है वो एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट को नहीं है, उसे देन एंड देयर भी गन शॉट किया जा सकता है। ये तो नहीं हो सकता ना सर कि आप इंटरप्ट करें। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप स्पेशल कानून लाएंगे आप, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल पूरी दुनिया में? लेकिन इसमें एक चीज और है ना कि जो ये बात कर रहे हैं आदिल के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवानीन हैं और उस दायरे में अगर PTI के कुछ लोग आए हैं 9 मई के ही उसमें, तो उन पे कितना अमल हुआ है पहले मुझे ये भी बता दें। उन कवानीन पे कितना अमल हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वो आपके सामने, कितना अमल हो जाएगा? नैब में ये अमेंडमेंट ना करते तो PTI या उनकी लीडरशिप को नैब के अंदर फंस जाना था। पीका पे अमेंडमेंट हुई, वो भी बच गए उससे। इन्होंने बड़ा तेज, ये साइकिल आज 54 बिल्स वाला नहीं है, ये को 1.5 साल से लगे में सिलाई मशीन तेज चलाने में। प्रॉब्लम ये है कि कवानीन होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज भी बड़े स्ट्रांग हैं, ये अपनी मर्जी से उसको मोल्ड करते हैं। और एक चीज तरह मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि हमने बिल्कुल, ये हमें उसूलन बात करनी चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक रोल रहा है, बड़ा स्ट्रांग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोई फीडर पीता चूचा बच्चा नहीं है कि आप क्यों, हमारे यहाँ क्यों नेल्सन मंडेला नहीं पैदा होते? इसलिए नहीं पैदा होते कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कहते हैं क्या हुआ है मुझे तो पता ही नहीं है। आज हम यहाँ पे पहुंचे, एस्टैब्लिशमेंट की वजह से आज